Hello guys. Before introducing myself, I will like you to get familiar with the word biology. बायोलॉजी जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है बायो? बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी इज derived from two Greek words, that is bios, that means life, and logos is the study of. Thus, biology, it is the study of life or living things. Biology क्या study of life or living things. You must have heard about Aristotle, who is known as the father of biology. Biology is the study of life and Aristotle is the father of biology. Let's also talk about the two main branches of bio. The one is botany and the second is zoology. In botany, you will be studying the study of plants, and second, zoology, you will be studying about animals. Now moving further, hello, I am Dr. Kansha Singh and I am Dr. Kansha Singh from CVA in association with Safalta.com, and we are here to learn biology. We will do it in such a systematic manner that we will cover the syllabus of NEET as well as your academics simultaneously. But by this you will be scoring good marks in your boards as well as I will make sure that you will crack your NEET exam in the first attempt. तो जो भी हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा. सारे टॉपिक्स के MCQ वगैरह हम हैंड टू हैंड अभी सॉल्व करते जाएंगे ताकि एट दी एंड हमारे पास कुछ बचे ही ना कि जो हमने पढ़ा ही ना हो. तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड. जब हमने बोला द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले क्या आया? व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लाइफ? Please hold on, there is some technical problem.
Okay, let's start with the chapter. My 11th class में the first chapter is what is living. So this is just an introduction for this chapter. Here we will be covering what is living and what are the characteristics of living that differentiate it from non-living. First जब हमने पढ़ा what is living, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? Living thing क्या है और life क्या है? What is life and what is living? लाइफ को कभी एक सेंटेंस में हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ए यूनिक एंड इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस. वी आर लिविंग, एग्री. हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे केमिकल रिएक्शंस पूरे टाइम चलते रहते हैं, तो उसी से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ हम लिविंग हैं, हमारे अंदर एक लाइफ चल रही है. तो लाइफ इट इज ए complex, rather it is a unique and complex organization of molecules that express itself through chemical reactions. Okay. Now living organisms show some unique and distinctive characteristics which help us in recognizing and differentiating them from non-living. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ यूनिक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम आर नॉन लिविंग थिंग, जिससे कि हमें पता चलता है कि इट इज़ लिविंग और इट्स नॉन लिविंग. नाउ टेकिंग अ लुक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर दे? इट इज़ ग्रोथ, reproduction, metabolism and consciousness. In this chapter, we will be covering all 4 topics like growth, reproduction, metabolism, consciousness in concern with the living thing and non-living thing. Let's take growth. What is growth? Growth is a fundamental characteristics. It is a fundamental characteristics of a living being. It is increase in number and mass of cell by cell division. ग्रोथ में हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी? या तो नंबर में इंक्रीज हो रहा है और अदरवाइज मास ऑफ अ सेल, या तो मास में इंक्रीज हो रहा है बाय सेल डिवीजन. इट इज़ ए इंटेंसिक प्रॉपर्टी. इंटेंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट विच एक्ट्स फ्रॉम विद इन अ इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल के जो अंदर से एक्ट करता है, दैट एक्ट फ्रॉम विद इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज इंटेंसिक प्रॉपर्टी. वेयर एज वॉट इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के या फिर किसी थिंग के बाहर से एक्ट करता है. इसका एग्जाम्पल आपको अभी समझ में आएगा जब हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ग्रोथ लिविंग बीइंग में कैसे हो गई? या तो इंक्रीज इन नंबर हुआ या इंक्रीज इन मास ऑफ अ सेल हुआ, और इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ओके. अब चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके पास, हर किसी के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रो करे. इट हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रो.
ग्रोथ तो सबके पास होती है, बट सबका पैटर्न कैसा होता है और ड्यूरेशन कब वो शो करते हैं ग्रोथ की, ये सब में अलग होता है। जैसे कि टेकिंग एग्जांपल ऑफ प्लांट में ग्रोथ पूरा लाइफ स्पेन पे होती है। जैसे प्लांट कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो 1 साल तक बढ़ेगा या वो 2 साल तक बढ़ेगा फिर वो रुक जाएगा, नहीं, हर एक पर्टिकुलर प्लांट का जो ग्रोथ पीरियड होता है वो उसका पूरा लाइफ स्पेन होता है। और जब हम एनिमल्स में देखेंगे तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है इट इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ स्पेन, ओके। This point says, next point says that growth and reproduction are mutually inclusive events in unicellular organisms. Organisms unicellular होते हैं, multicellular होते हैं, ठीक है। This you know, अब इसमें क्या कह रहा है, वो unicellular में growth और reproduction क्या होते हैं, mutually inclusive events होते हैं। mutually inclusive events का क्या मतलब होता है, mutually inclusive event का मतलब होता है कि जो एक ही टाइम पे दो इवेंट्स साथ में अकर कर सकते हैं। द इवेंट्स विच कैन अकर एट द सेम टाइम। तो अब ये क्या बोल रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं। वो कैसे हो जाएंगे, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक अमीबा है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा। इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब इसमें ग्रोथ होगी, मतलब कि जब इसका सेल डिवीजन होगा तो ये 2 हाफ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 हाफ्स में कन्वर्ट हो गया, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर हुआ, 1 से ये 2 हो गए, और इंक्रीज इन मास हुआ। एट द सेम टाइम हमने क्या देखा कि इस जो ये पेरेंट सेल था इससे 2 डॉटर सेल ओरिजिनेट हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्री, ठीक है। अब ये बात हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इनमें ग्रोथ कैसे होती है। दूसरा पार्ट, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है, उनमें तो अंदर से कोई ग्रोथ होती नहीं है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो होती है। वो कैसे होती है, जैसे कि फॉर टेक एग्जांपल ऑफ अ स्नो माउंटेन। हमारे पास एक, हमने देखा एक स्नो माउंटेन है जिसका साइज इतना था पहले, फिर उसके बाद जैसे स्नोफॉल होता है, ठीक, स्नोफॉल हुआ तो उससे हमने बाद में क्या देखा कि जो माउंटेन का साइज था वो इंक्रीज हो गया ड्यू टू द accumulation ऑफ स्नो। इसके ऊपर से स्नो डिपॉजिट हो गई, तो जो पहला साइज था माउंटेन का वो उससे इंक्रीज हो गया। तो ग्रोथ तो यहाँ भी शो हुई, भले ही वो इंटरनली हुई या एक्सटर्नली हुई, ग्रोथ तो हुई। तो ग्रोथ के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ cannot be a defining property of living organisms, ठीक है, क्योंकि लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, तो हम ग्रोथ को किसी एक पर्टिकुलर चीज का फीचर नहीं बता सकते, ठीक। अब हमने ग्रोथ के बारे में हमें क्या की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं फॉर MCQs एज वेल एज फॉर दिस टॉपिक। ग्रोथ हमने पढ़ी लिविंग में और हमने पढ़ी नॉन लिविंग में। लिविंग में कैसी ग्रोथ शो हो रही थी, दैट वाज इंट्रिंसिक, वाइल नॉन लिविंग में कैसी ग्रोथ शो हो रही थी, एक्सट्रिंसिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, वाइल जो नॉन लिविंग में होती है इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। एक तो लिविंग नॉन लिविंग का हमने डिफरेंस पढ़ा था, और हमने पढ़ा
यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। मतलब यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स थे, वो दोनों साथ में आकर कर रहे थे। वाइल इन मल्टीसेलुलर growth and reproduction are mutually exclusive events. Okay. मूविंग फॉरवर्ड, अब जैसे हमने जब भी हम एक टॉपिक कवर करेंगे उसके जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होते हैं वो हम हाथ के हाथ सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आया और हमारी प्रिपरेशन भी होती रहेगी। दैट्स हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर नीट एज वेल एज आर एकेडमिक एग्जाम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अभी हमने क्या पढ़ा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किस में होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एग्जाम्पल भी पढ़ा हमने स्नो माउंटेन का, तो स्नो माउंटेन में इट शोज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। मूविंग ऑन द सेकेंड एमसीक्यू, व्हाट इट सेज, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर बाय। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे अकर करती है, डिवीजन ऑफ सेल होता है। ग्रोथ का हमने क्या पढ़ा था, हमने दो बेसिक फीचर्स पढ़े थे, एक तो इंक्रीज इन मास हो रहा था और इंक्रीज इन नंबर हो रहा था। तो डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है, इंक्रीज इन मास। व्हाट्स द सेकंड टॉपिक, इट्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। माइंड दिस, सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक। रिप्रोडक्शन होता है बट उसमें ऑफस्प्रिंग कैसा प्रोड्यूस होता है, इट इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कि जैसा पेरेंट होगा वैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग होगा। So what is reproduction? It is a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself. Reproduction हम living organisms करते हैं, but reproduction is not necessary for living. Reproduction तो सब करते हैं, but it is not necessary for living. कैसे कि जो ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन नहीं शो करते तो क्या वो लिविंग नहीं होते, वो भी लिविंग होते हैं। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज रिप्रोडक्शन। देयर इज एन एक्सेप्शन और एग्जाम्पल, म्यूल, अनदर इज वर्कर्स बी, and the third is infertile human couples. There are many couples that who cannot reproduce or cannot give rise to their young ones. They are living. Okay? तो इससे क्या पता चला कि रिप्रोडक्शन को भी हम किसी का लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते. इट इज ऑल्सो अ non-defining feature. Though it is a fundamental characteristics of living, but it is not a defining feature of a living organisms. Reproduction से क्या होता है? It enables the continuity of the species generation after generation. Reproduction से क्या होता है? Continuity होती है species की generation after generation. ठीक है? The period from birth to natural death of an organism is known as its lifespan. जो हमारा बर्थ से लेके हम एक पीरियड होगा जहाँ तक नेचुरल डेथ नहीं किसी ऑर्गेनिजम्स की हो जाती, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन. तो रिप्रोडक्शन में हमने ये देख लिया कि उसका इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ठीक है. अब रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है. ठीक, दो टाइप का होता है. इट इज asexual
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के फर्दर टाइप्स होते हैं, ऐसे ही सेक्सुअल के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर स्टेजेस होते हैं। लेट्स रीड दिस। एक हो गया टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज एसेक्सुअल एंड द अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है? Asexual, it means A that signifies absence। बायो में मोस्टली आपको ना वर्ड देखना चाहिए, वर्ड में ही उसका आंसर छुपा होता है। अब यहाँ पे लिखा है asexual, मतलब that is not sexual is asexual, agree? तो ये क्या होता है? It is uniparental, fertilization is absent। It is easy to remember asexual for absent, तो fertilization is absent। Sexual reproduction में क्या होता है? It is biparental। Bi का मतलब क्या हुआ? Two। It means दो parents involve होते हैं। और जबकि हमने asexual में देखा uniparental, uni means one। छोटे छोटे वर्ड्स के मतलब हमेशा याद रखने पड़ेंगे। आगे भी ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर्स आएंगे या बाकी टॉपिक्स आएंगे तो इनका मतलब चेंज हो जाएगा। हमेशा यूनी का मतलब वन ही रहेगा, बाय का मतलब टू रहेगा। ओके। और ए सेक्सुअल जहां भी ए ऐसा आएगा उसका सिग्निफिकेंस होगा मतलब कि एब्सेंस। ओके। तो ए सेक्सुअल में क्या कितने टाइप? फिजन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फिजन होता है, बडिंग होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और भी होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ इन तीन पे ही जाएंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक में अभी इन तीन का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस बताए हुए हैं, ये इन डिटेल हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा इतना याद रखना जरूरी है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिजन का मतलब होता है डिवीजन। ओके। फिजन का मतलब होता है डिवीजन, मतलब कि कोई भी एक चीज दो में डिवाइड होती है। अभी हमने पहले एग्जांपल देखा था अमीबा का, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स थे जो एक साथ अकर हो रहे थे। तो उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था अमीबा का, जो कि डिवाइड होता है फिजन से। तो फिजन का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है। नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, फिगर देखो। इसमें एक पेरेंट सेल है, ठीक है, एक पेरेंट सेल है जिसमें कि डीएनए डुप्लीकेट हुआ। ठीक। सेल ये अभी भी एक है, बस इसका अंदर ही अंदर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है। डीएनए डुप्लीकेशन और ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे जाके उसमें डीएनए वाले चैप्टर्स में। आगे फर्दर चैप्टर्स आएंगे, अभी आप इतना ही समझो सर। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है सेल का। ठीक। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और उसके बाद ये दोनों दो इंडिविजुअल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो। ठीक। अब इन दोनों का न्यूक्लियस भी अलग हो गया, डीएनए साइटोप्लाज्म का सब अलग हो गया, तो ये एक से दो बन गए। दैट इज फिजन। मतलब क्या हो गया? इनका डिवीजन हो गया। अब ये डिवीजन दो टाइप से हो सकता है। इट कैन बी बाइनरी फिजन और इट कैन बी मल्टीपल फिजन। बाइनरी, अभी हमने बाई का मतलब पढ़ा था। बाइनरी, बाई का मतलब होता है टू। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? एक मदर सेल से एक मदर सेल डिवाइड हो रहा है दो डॉटर सेल्स में। एक मदर सेल डिवाइड हो रहा है दो डॉटर सेल्स में। वाइल इन मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मतलब क्या होता है? मतलब दो से ज्यादा। दो का तो जो फिजन होता है उसे हम बोल देंगे बाइनरी फिजन। और जो दो से ज्यादा जिसमें डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो दो से ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल फिजन। ओके। डोंट कंफ्यूज द वर्ड फिजन विथ फ्यूजन। एक वर्ड होता है फ्यूजन जिसका मतलब होता है मिलना। फिजन मतलब होता है डिवीजन जिसका मतलब होता है डिवाइड करना। जिससे रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक से दो प्रोड्यूस हो रहा है। ओके।
सेकेंड टाइप आता है बडिंग। बडिंग हम देखेंगे हाइड्रा में। सिर्फ अभी दो एग्जाम्पल याद करो, हाइड्रा और ईस्ट। इन दो में हम देखेंगे बडिंग। बडिंग में क्या हुआ, एक पूरा मैच्योर सेल है, मैच्योर ईस्ट सेल है। इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मेशन ऑफ बड होगा। बड का फॉर्मेशन हुआ, ये बड ग्रो करता जाएगा और आफ्टर अ टाइम बीइंग न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इटसेल्फ इनटू टू एंड इट विल प्रोड्यूस टू इंडिविजुअल डॉटर सेल्स। ठीक, बडिंग में क्या हुआ, एक मैच्योर ईस्ट सेल था, ठीक, उसमें क्या हुआ, बड का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक, बड फॉर्मेशन हुआ, यही बड आने वाले टाइम में ग्रो करता जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा भी। दैट मीन्स ए सेक्शुअल हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, पेरेंट इसमें अभी भी एक ही इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट से दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, बस इनका मोड अलग अलग हो जाता है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, टाइप अलग अलग हो जाता है। ठीक, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। हमने देखा होगा, जो भी जैसे हम गार्डनिंग करते हैं तो नए नए प्लांट्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई भी उसका या तो सीड हम लगाते हैं जो ग्रो करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक अच्छा पूरा एक फुल ग्रोन प्लांट है, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने उसका एक ग्रोइंग पार्ट हमने उसका कट कर लिया, जैसे मान लो स्टेम हमने उसका एक कट कर लिया, उसको ग्रो कर दिया, वो खुद अपने आप में एक इंडिविजुअल प्लांट की फॉर्म में ग्रो कर जाएगा। दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में हमने पढ़ा था कि एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। ठीक, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, वाइल सेक्सुअल में वो प्रेजेंट होता है। ठीक, ए सेक्सुअल के हमने टाइप्स पढ़े, फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन होती है ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स आर सेक्स सेल्स। ओके, आगे चैप्टर्स में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दैट व्हाट आर गैमीट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक, ऑफ ऑपोजिट सेक्स। रिमेंबर दिस, दो पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स बट सेम स्पीशीज। स्पीशीज सेम रहेगी। अगर ह्यूमन है तो दोनों पेरेंट ह्यूमन्स ही होंगे, अगर कोई एनिमल है तो दोनों पेरेंट्स एनिमल ही होंगे। ठीक, गैमीट फ्यूज करते हैं, सॉरी, gametes fuse to form zygote. zygote डेवलप करते हैं दो गैमेट्स मिलके, जो कि आगे जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करता है। ठीक,
तो क्या पढ़ा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में हमेशा एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक, और फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ऑपोजिट सेक्स के बट सेम स्पेशीज के, ठीक। इसमें क्या होता है, गैमीट फ्यूज करते हैं टू फॉर्म जाइगोट, जिससे कि जो डेवलप होता है और आगे बनता है एक न्यू इंडिविजुअल, ठीक। अब थर्ड पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। ने सुना होगा, हम लोग को मेटाबॉलिज्म के बारे में पहले से कोई ऐसा डिटेल नहीं पता होता, तब भी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि यार तेरा मेटाबॉलिज्म तो बहुत अच्छा है, तेरा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे जब हम छोटे होते हैं तो हम ये सब बात करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, हमारी बॉडी बहुत सारे केमिकल से बनी होती है, एग्री, बहुत सारे केमिकल से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स में बी स्मॉल एंड लार्ज बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस एक्सेट्रा, ठीक। बॉडी है हमारी, बहुत सारे केमिकल से बनी हुई है और इन केमिकल्स का साइज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ए ऑर्गन, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक। thousands of chemical reaction which occur inside living organism during various processes, जो ये 1000 of chemical reactions होते हैं हमारी बॉडी में ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस, जो हमारी बॉडी में वेरियस प्रोसेस चल रहे होते हैं, जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल में, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है या डाइजेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो एक्सेट्रा हेल्प्स टू मेंटेन it is a unique and organization of a molecule that express itself through chemical reaction। हमने पढ़ा था लाइफ अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है, थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो वही केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, हमें पता चलता है it helps to maintain their living state। The sum total of all the chemical reactions occurring in the body of a living organism is known as metabolism। मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, जितना भी सम टोटल है केमिकल रिएक्शंस का, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ओके, अब मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज एनाबॉलिज्म। देखो समझ बेटा, दो चीज़ें होती हैं। एक हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है एक बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ हो सकती है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक करता है, ठीक, और उससे डेवलप होते हैं फर्दर छोटे अलग मॉलिक्यूल्स। तो द मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म। इससे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। एग्जाम्पल, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं प्रोटीन का, ठीक। और सेकंड क्या होता है, सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, whereas those metabolic processes in which the large molecules are broken down into smaller are known as catabolism। ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हमारी बॉडी में शुगर होता है, दैट ब्रोक डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लिबरेट एनर्जी, दैट इज एटीपी। शुगर का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ब्रोक डाउन होगा इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी, ठीक। तो मेटाबॉलिज्म में हमने तीन चीजें पढ़ी, ठीक ना। एमसीक्यू किसी भी चीज पे आ सकता है। एमसीक्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं देंगे, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म के बारे में जरूर देंगे, और डायरेक्ट भी नहीं देंगे। जितने हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, जैसे हमने शुगर का एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है, वो इस पूरे एग्जाम्पल को कोट कर देंगे और उसके बाद पूछेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस था। इसकी डेफिनेशन तो याद करना फिर भी इजी होता है, बट लर्न इट विद एग्जाम्पल, ठीक है। तुम समझो, तुम्हें लर्न करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। कैटाबॉलिज्म में क्या पढ़ा था, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, वो कैटाबॉलिज्म हो गया।
एनाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, जिससे छोटे छोटे से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बन रहा है। ठीक, चलो अब इसके एमसीक्यू देखते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व, मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या था? synthesis of biomolecules, no. all chemical reactions which occur inside an organisms, एक organism के अंदर जितना भी chemical reaction का sum total है, it is known as metabolic reactions. okay, अब देखो, अब ये second MCQ आया एग्जाम्पल में। when green plants capture sunlight, green plant ने sunlight capture करी, यूटिलाइज करा उसको सिंथेसाइज करने में ग्लूकोज, द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर सेड टू बी, एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक, उसको यूटिलाइज कर रहा है वो फर्दर बनाने के लिए। तो ये हमने कौन सा वाला पढ़ा था? कैटाबॉलिज्म था, एनाबॉलिज्म था, ये कौन सा था जिसमें एक छोटे से बड़ा बन रहा था? दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शंस। So the answer is anabolic reactions. Moving further, consciousness. The consciousness बहुत ही obvious एक चीज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में, but it is technically complicated feature of all living organisms. मैंने क्या बोला? It is obvious but technically complicated feature of all living organisms. ठीक है, हम लिविंग बीइंग हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, ठीक, हमें पता है कि कब हमें चोट लग रही है या कब कोई इंसान हमसे कोई बात कर रहा है, तो इट मीन्स वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, दैट मीन्स वी आर, मतलब ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर प्रॉपर्टी है, ठीक है, एग्री। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू डिटेक्ट चेंजेस, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या चेंज हो रहा है, सेंस देयर सराउंडिंग एंड कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू देम, हम अपनी सराउंडिंग को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। दिस इज नोन एज सेंसिटिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे कि वी आर सेंसिटिव, हमारे अंदर सेंसिटिविटी है, ठीक। सेंसिटिविटी इज डिफाइंड जो वो MCQ में हमसे पूछेंगे, द एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज। Sensitivity is the ability to detect change in the environment and to give response through it accordingly. ठीक, any change that can be detected, उसको हम क्या बोलेंगे? कोई भी चेंज हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। एक ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। क्या बोला? ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ही हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस किस एक ऑर्गेनिज्म में है? वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है, बेटा, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो ये की पॉइंट है जो कि याद रखना पड़ेगा। Plant respond to external factors like light, temperature, water, pollutants, other organisms, etc. ठीक है, जो सन है, जिस साइड सन होता है वो उस साइड फेस करता है ड्यूरिंग डे टाइम, और ड्यूरिंग द नाइट वो ऑपोजिट टर्न हो जाता है, ठीक। इसका मतलब क्या है? प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से। एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे क्या है? लाइट, सनलाइट एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे कि प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक। Therefore, all organisms are aware of their surroundings, so it is a defining property of living organisms. ठीक, हमने दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पढ़ी, एक तो मेटाबॉलिज्म पढ़ा, मेटाबॉलिज्म भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, और हमने दूसरी क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। लेट्स टेक द MCQs। सेंसिटिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू ग्रो? नहीं।
Ability to reproduce? No. Ability to detect changes in the environment, right? Sensitivity क्या पढ़ा हमने? It is the ability to detect changes in the environment. Second one is, what is not a feature of all living organisms? अभी हमने एक फीचर ऐसा पढ़ा था जो किसी भी मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग में होता है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. ओके, आई होप सबको समझ आया. हम ये सेशन अपना मतलब सिर्फ इतना ही शॉर्ट रखेंगे. We will move forward in our further classes. So thank you for connecting and thanks for watching. We will meet in our next classes. Keep liking and subscribing.